Good morning, students. So, how are you all? Okay, so you should be fine actually. So, in this chapter, The Lifelines of the Economy, this is a seventh chapter of this book. So, in this chapter, we are going to learn about means of transport, pipelines, waterways, and seaports, and apart from this, airways and communication, international trade, and tourism also. So, we use many materials, items, and services in our daily life. So, some of these things are easily available near us for in our immediate surroundings, but some are not. And people involved in supplying the products to consumers are known as traders, and the things have to be brought from other places. The movement of these things from supply to demand locations require transport. And if we talk about the pace of development of country depends on the production of goods and services as well as their movement also. So fast development is dependent on efficient means of transport. So first we will talk about the means of transport. Okay. So in this chapter, if we will talk about the means of transport, so since a long time, trade and transport moved within restricted boundaries of space and time. And however, with the development in the field of science and technology, trade and transport have spread all over the world. So the world has become one big village, and distances have become immaterial. Or to be more precise, distances seem to have shrunk. So this has been made possible by the development of a fast and efficient communication system. So trade, transport, communication complement each other. So वी कैन से दैट कि जिस तरह से पुराने टाइम में जो हमारे ट्रांसपोर्ट हुआ करता था और आज के टाइम में जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारा जो ट्रेड है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिस तरह से स्प्रेड हुआ है, अगर हम इसकी बात करते हैं किस तरह से डिस्टेंस श्रिंक हो गए हैं या डिस्टेंस कम हो गया है और किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हमारा फास्ट हुआ है, डेवलप हुआ है, सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज. ठीक है. So means of transport में. So today life has become very complex. So we are all dependent on each other. Even trade has expanded from local to international levels. And India today is well linked to the rest of globe despite its huge area, diversities and pluralities in the linguistic and socio-cultural fields. So transport and communication have enriched them both socially and economically, and our lives have become easier and more amenities and comforts are readily available to us. So जिस तरह से हमारे अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हम लोग बोलते हैं, हमारे अलग अलग जो सोशल कल्चरल फील्ड्स हैं, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है इनको क्या करता है, एनरिच करता है, चाहे वो सोशली हो या इकोनॉमिकली हो. ठीक है. ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही अगर फास्ट और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा या कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं. सो इट इज़ एविडेंट दैट modern means of transport and communication are the lifelines of our nation and its economy. Okay, so trade be it local, national or world. तो ट्रेड जो है कैसा भी है, लोकल है, नेशनल है या वर्ल्ड में कहीं भी है, सो इट डिपेंड्स लार्जली अपॉन अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Okay, so the earth is endowed with three important domains. We all know about it: land, water and air, and which can be used to move goods and services. और उनको हम एक जगह से दूसरी जगह जो हमारे goods and services हैं उनको कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं. So we can divide this transport in three categories: land, water and air. Okay, so when we are talking about the means of transport, to come to these three categories: land, water and air. So in land, we will read about the roadways, railways and pipelines, and in the water, inland water ways जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, and the overseas also.
And in the air transport, we will learn about the domestic airways and international airways. And in the domestic airways, we will also learn about the public undertakings and private airlines also. Okay, so first, transport is a system in which passengers and goods are carried from one place to another. We all know that. Okay, so since the beginning of civilization, humans have been moving from place to place in search of food, for trade, and for earning a living. So, these movement is an essential component of life. And in older days, man carried his own load, but the domestication of animals and later with the development of science and technology, and transport became easier, faster and more comfortable. तो पुराने टाइम्स की अगर हम बात करते हैं और अब के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो पुराने टाइम से अब तक हम लोग जो है पैसेंजर्स हैं या चीज़ें हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और पुराने टाइम से जो हमारा सिविलाइजेशन था, कितनी भी जो सिविलाइजेशन हुई है तब से लेकर अब तक जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे पहले हम जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हुआ करते थे उनको हम यूज़ करते थे फॉर कैरिंग आर लोड, बट नाउ दिस डेज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ट्रांसपोर्ट जो कैसा है बहुत ईजी हो गया है, फास्ट हो गया है और बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है। Okay, so let's start with the roadways. So in this lecture, I will teach you about the roadways, and in this, first we will talk about the golden quadrilateral superhighways also. Okay, so roadways की हम बात करें तो India today has one of the largest road networks in the world. इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क्स हैं वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। So the importance of roads had been recognized in India since the ancient times, and kings such as Ashoka, Chandragupta built roads for easy transportation of goods and people, and construction of roads was an important activity during the Mughal period. तो इतने टाइम से जब ये अशोका की हम लोग बात करें तब से ही जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, तब से ही रोडें जो है सड़कें जो है बनती आ रही हैं। और उसके बाद जो मुग़ल पीरियड था उस टाइम पे भी काफ़ी सारी सड़कों को कंस्ट्रक्ट करवाया गया। सो द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं इन द शॉर्ट, वॉज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी अक्रॉस द इंडो गैंगटिक प्लेन। तो इंडो गैंगटिक यानी कि इंडिया का जो गैंगटिक प्लेन है, गंगा वाला जो प्लेन एरिया है, सबसे पहले वहाँ पर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई बाय शेर शाह सूरी, ठीक है। फ्रॉम, अब कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कोलकाता इज़ द ईस्ट टू पेशावर इन द वेस्ट। कोलकाता से लेकर पेशावर तक, पेशावर इज़ नाउ इन द पाकिस्तान, ठीक है। तो फर्स्ट जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जिसे कोलकाता से लेकर पेशावर तक बनवाया गया था। यानी कि पूरा जो गैंगटिक प्लेन है, इंडो गैंगटिक यानी कि इंडिया का जो गंगा वाला प्लेन एरिया है, पूरा इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। सो रोड्स वर डेवलप्ड फ्रॉम अर्ली कार ट्रैक्स विच आर स्टिल फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो टुडे इंडियाज रोड नेटवर्क एग्रीगेट्स टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर। अभी अगर इंडिया का रोड नेटवर्क अगर हम देखते हैं, अगर हम एग्रीगेट लगाते हैं तो इट इज़ अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर। सो दीज रोड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 6 मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, सेकेंड नेशनल हाईवेज, थर्ड स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। तो इस तरह से इसको 6 पार्ट्स में हम लोगों ने जो है इसको डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू their importance. So today in this lecture we will discuss about the golden quadrilateral super highways. Okay, so क्या है ये golden quadrilateral super highways? मैं आपको पहले इसको एक बार मैप पे दिखा देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आप मैप में देख रहे हैं, ये जो येलो पोर्शन है या ये जो येलो लाइन है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। एक्चुअली ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या, ठीक है, उसको समझते हैं। सो दिस रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिंक्स 4 जो हमारे मेन सिटीज़ हैं। देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आई एम यूजिंग द ब्रश,
सी। ये जो येलो पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं? पहली बात तो, एक तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल शेप में क्यों है? क्योंकि ये ऐसे 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है जो कि पूरी इंडिया को कवर कर रहे हैं, या इसके थ्रू पूरा इंडिया कवर हो रहा है। जो मेन 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको ये कवर करता है। जैसे कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई एंड चेन्नई टू मुंबई। सो इस तरह से क्या बन रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उसको नाम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब इसके साथ साथ जो बाकी की सिटीज़ हैं वो भी कनेक्टेड है। कहाँ कहाँ से होकर ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है वो कहाँ कहाँ से पास होती है? देन यू कैन सी इन द मैप, ठीक है, यस। अब इसके अलावा और भी लाइंस हैं, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नेशनल हाईवेज़ है ना, विद नंबर। तो ये चीज़ नेशनल हाईवेज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बट आज इसको ख़त्म कर लेते हैं जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ है, ठीक है। नाउ कम टू द अगेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़, यस। सो दिस रोड डेवलप्ड प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिंक्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली टुगेदर। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन चारों को जो एक जोड़ने का काम था, लिंक करने का काम था, मेन प्रोजेक्ट जो था गवर्नमेंट के थ्रू वो ये था, ठीक है। एंड दिस लिंक्स इज़ द 6 लेन सुपर हाईवे। ये 6 सुपर हाईवे को लिंक करता है एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ मैनेज्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है वो किस किस सिटी को या किस किस सिटी को जोड़ते हुए बनाया है, कौन सी सिटी को लिंक करते हुए बनाया गया है? तो इसका आंसर आएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ठीक है। दूसरा, इसको जो इस प्रोजेक्ट को जो मैनेज करता है या इसकी जो मेंटेनेंस देखता है उस कंपनी का बोल सकते हैं या उस अथॉरिटी का नाम क्या है? सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यू कैन गिव द आंसर हियर, ठीक है। अब ये कितने कितने को कनेक्ट करता है, कितने टाउन्स हैं? हालांकि बहुत सारे टाउन्स हैं, बट कई बार पूछा भी जा सकता है। तो आप मैप को ज़रा देखेंगे कौन कौन से सिटीज़ या टाउन्स हैं। टाउन्स तो नहीं मिलेगा इसमें, बट सिटीज़ जो हैं कौन कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट करता है वो आपको मैप के थ्रू समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इंटरकनेक्ट्स many major cities and ports and helps in industrial growth in all small towns। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे बढ़ाता है या किस तरह से उसको हेल्प करता है? तो कैसे हेल्प कर रहा है? क्योंकि ये जो मेजर सिटीज़ हैं या पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है छोटे टाउन्स के साथ या इंडस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रीज़ में भी ग्रोथ होगी। क्यों? जो भी इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कहीं से रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो उस तरह से उनको क्या होगा? हेल्प मिलेगी। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द हिंटरलैंड टू मेजर सिटीज़ एंड पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, एज ऑल्सो प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। तो इसके थ्रू, ये जो सुपर हाईवेज़ है, इसके थ्रू जो पोर्ट्स हैं, क्योंकि पोर्ट्स को भी कनेक्ट कर रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए जो भी हमें एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, उसमें हेल्प कर रहा है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हमारा, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या ये जो रूट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है, ठीक है। और इसके अलावा जब इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या जब किया गया था तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को जॉब भी मिली। सो इन एडिशन इट ऑल्सो क्रिएट्स अ डिमांड फॉर सीमेंट। तो सीमेंट की डिमांड हुई, स्टील की डिमांड हुई, अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है उसकी भी डिमांड हुई। तो इससे क्या हुआ? जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी काम मिला, है ना, उनको भी इकोनॉमिकली हेल्प हुई, कि वहाँ से जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे यहाँ पे बनाने के लिए, है ना, जो भी मटेरियल है, जो भी है, सीमेंट है, स्टील है, वो सारा जो है इंडस्ट्रीज से आ रहा है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। So these super highways reduce the time and distance between the mega cities of India। और इस सुपर हाईवेज़ की वजह से जो टाइम है सिटीज़ के बीच में वो भी कम हो जाता है। सो द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो
लिंक करता है श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु में, एंड ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर जो है वो लिंक करता है सिलचर यानी कि असम एंड पोरबंदर इन गुजरात, आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये इस प्रोजेक्ट के कुछ इंटीग्रल पार्ट्स हैं जिस तरह से कनेक्ट करता है। एक बार वापस से देख लेते हैं हम इसको, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को मैप में। कम टू द मैप अगेन। देखिए ये जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा हो गया, नॉर्थ और साउथ। जस्ट अ मिनट। देखिए ये जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये वाला कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर से क्या जो है कन्याकुमारी है, ठीक है, वहाँ तक इसको ज्वाइन कर रहा है। कैसे ज्वाइन कर रहा है, थ्रू दिस वे, ठीक है। इस वे के थ्रू जम्मू जो है कन्याकुमारी के साथ ज्वाइन हो रहा है। हियर इज़ कन्याकुमारी, द लास्ट पॉइंट, ठीक है। वापस से देखते हैं, श्रीनगर से ऐसे करते हुए कन्याकुमारी को हम इस रूट के थ्रू ज्वाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। पूरा रूट वहाँ तक नहीं जा रहा है बट यहाँ तक हेल्प कर रहा है, फिर वहाँ पे आगे हमारे लिए दूसरा रूट भी है। सेम विद द श्रीनगर ऑल्सो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसे असम का सिलचर है, असम का सिलचर से लेकर ये पोरबंदर जो है पोरबंदर तक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, गुजरात का पार्ट पोरबंदर, पोरबंदर और सिलचर को कनेक्ट कर रहा है। अब कनेक्ट कैसे कर रहा है, थ्रू दिस वे, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होता है और ऐसे घूमते हुए ऐसे आ सकता है, या ये जो रेड वाला पार्ट है इस रोड को भी हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ पूरे इंडिया को एक तरह से लिंक करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है। चलिए अभी आपको यहाँ तक बात समझ में आई, गुड। नहीं समझ में आई, कोई डाउट रह गया, देन पुट अ मैसेज इन द मैसेज बॉक्स, ओके ओके। तो फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और तब तक लिए कोई डाउट रह गया है then you can ask me anytime personally also. I have no issues. Clear? That's good. So take care and have a nice day.